میں قبیل خان کی حویلی کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس جانب سے مجھے دھواں وغیرہ اٹھتا ہوا دکھائی نہ دیا، حالانکہ میں نے سردار کو واضح طور پر کہا تھا کہ حویلی کو آگ لگا دے۔ ایک دفعہ تو میرا دل چاہا کہ اس طرف جا کر خود آگ لگا کر آؤں، مگر پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ہمارے کام کا اصول یہی تھا کہ جب تک میں سردار سے مکمل تفصیل معلوم نہ کر لیتا میرا اس طرف جانا بنتا نہیں تھا۔ سردار نے غار کے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا، راجے کھانا کھا لو۔ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، کھانا؟ وہ بولا، قبیل خان کے آدمیوں نے جو اپنے لیے کھانا بنایا ہوا تھا میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تم لوگ بھی کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ وہ بولا، بے وقوفی کی باتیں نہ کرو۔ اس نے قریب آ کر مجھے بازو سے پکڑا، وہ ایک مظلوم لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یار کہہ دیا نا بھوک نہیں ہے۔ وہ بولا، اچھا کھانا نہ کھاؤ لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ زبردستی مجھے اندر دھکیل کر وہ خود باہر سے خشک لکڑیاں اٹھانے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے پتھریلی چھت میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ سفید چہرہ میرے مارے ہوئے تھپڑوں کی وجہ سے گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے غم کے بادل دیکھ کر میرے دل میں موجود ندامت کے اثرات اور گہرے ہو گئے تھے۔ سردار نے پہلے سے بنے ہوئے پتھروں کے چولہے کے درمیان میں لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ لگائی اور اپنے تھیلے سے اسٹیل کا کٹورا نکال کر شاپر میں موجود سالن انڈیلنے لگا۔ دوسرے شاپر میں روٹیاں بند تھیں۔ سالن کا کٹورا آگ پر رکھ کر اس نے پانی کی بھری ہوئی بوتل اور اسٹیل کا گلاس بھی تھیلے سے نکال لیا۔ سالن گرم ہوتے ہی اس نے درمیان میں سالن رکھ کر کہا، پلوشا آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے سوچا تو گویا اس کا نام پلوشا خان ہے۔ شاید مردانہ حلیے کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنا نام پلو خان بتاتی ہے، اسی وجہ سے اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی پلو خان ہی پھسلا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ قریب ہو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ پورا دن یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا اور اس وقت سورج غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانا بنانے والے کے نصیب میں تھا، اور کھانا بناتے وقت اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کھانا وہ اپنے قاتلوں کے لیے بنا رہا ہے۔ واقعی انسان بہت بے خبر، انجان اور ناواقف ہے۔ سالوں بعد کے منصوبے بنانے والے کو اگلے پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کھانا لذیذ نہیں بھی تھا تو اس وقت بھوک کی شدت نے اسے مزیدار بنا دیا تھا۔ پلوشا جبڑوں پر لگنے والے مکوں کی وجہ سے نوالا صحیح طور پر چبا نہیں پا رہی تھی، اسی وجہ سے 2-3 نوالے لے کر وہ پیچھے ہو گئی۔ سردار نے فوراً پوچھا، کیا بات ہے بہن؟ اس نے غصے بھری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ کچھ نہیں بھائی، میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم بتائے بغیر سب کچھ اگل دیتی تو ابھی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتی، یہ سب تمہاری ضد بازی کا نتیجہ ہے۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، قبیل خان کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، اسے قتل کر کے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس خواہش میں پہلے بھی کافی منو مٹی تلے آرام کر رہے ہیں، ان میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اتنے 30 مار خان ہوتے تو ایک لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر تشدد نہ کرتے۔ میں نے اس کے حلیے پر پھپتی کسی، عجیب بات ہے تم خود کو لڑکی سمجھتی ہو۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تم جیسوں کے لیے میں یقیناً لڑکی نہیں ہوں۔ سردار بولا، تم لوگوں کو لڑنے کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے؟ جب دونوں جانتے ہو کہ یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی تو اب پرانی بات کو بھول جانا چاہیے۔ یوں بھی معافی تلافی ہونے کے بعد گزری باتوں کی اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ وہ حیرانی بھرے لہجے میں سردار کو مخاطب ہوئی، سردار بھائی، معافی تلافی کب ہوئی؟ معاف تو میں اسے تب کرتی جب یہ معذرت کرتا، اپنی غلطی اور زیادتی کا اعتراف کرتا، اور یقین کرو میں اس کے بعد بھی اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اس کے بعد اتنا ہوتا کہ قبیل خان کو قتل کرنے کے بعد جب اس کی باری آتی تو میں اسے دردناک طریقے سے قتل نہ کرتی، بس سر میں گولی مار کر جلد از جلد اس کی جان نکال دیتی۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی تیز چلتی ہے؟ وہ ترکی بترکی بولی، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ میری زبان تیز چلتی ہے یا ہاتھ۔ سردار زچ ہو کر بولا، یار راجے تم چپ کر جاؤ۔ میں کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، کس وقت چلیں گے؟ سردار نے کہا، آج رات تو مشکل ہے۔ میں نے کہا، کیوں، مروانے کا ارادہ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، پلوشا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، ہم نے اس کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، یہ شکر کرے کہ اسے قتل کیے بغیر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ بولی، شکر کرو سردار بھائی کی وجہ سے تمہاری جان عارضی طور پر بچ گئی ہے کہ اب قبیل خان کی موت کے بعد تمہارا نمبر آئے گا۔ سردار پلوشا کی بات پر توجہ دیے بغیر بولا، یہ اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ اور یہ بھی تو سوچو کہ اس کی حالت کے ذمہ دار ہم دونوں ہیں۔ میں نے غیظ بھری حیرانی سے پوچھا، تو کیا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم اس کی تیمارداری کرتے رہیں گے؟ وہ بولی، تمہاری گھٹیا تیمارداری کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، البتہ سردار نے مجھے بہن کہا ہے اور بہنوں کا خیال بھائیوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ہر بات اور ہر جملے میں میری ذات سے نفرت کا اظہار بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب دل کی گہرائی سے نہیں کہہ رہی۔ میں نے کہا، سردار خان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ حویلی کی ہر اس چیز کو تیلی دکھا دو جو آگ پکڑ سکتی ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہ کام تم کرتے تو یقیناً اتنی جلدی واپس لوٹ کر نہ آتے۔ شاید اس وقت تک میں اس کی یہ لمبی زبان بھی کاٹ چکا ہوتا اور یہ اس کی گیدڑ بھپکیاں سننے سے بچ جاتا۔ سردار بولا، راجہ صاحب، وہاں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے جس میں دنیا جہان کی IEDs اور بارود جمع ہے۔
ٹائم بم اور مختلف بارودی پھندے بھی پڑے تھے۔ بس میں نے 2 ٹائم بم تہ خانے میں لگا دیے اور دونوں گاڑیوں کے آئل ٹینک کے ساتھ بھی ایک ٹائم بم لگا دیا ہے۔ تمام پر میں نے 24 گھنٹے کا وقت سیٹ کر دیا ہے۔ تہ خانے کے دروازے کے ساتھ میں نے سوئچ نمبر 4 پر مارک 1 لگا دیا ہے کہ اگر کوئی 24 گھنٹوں سے پہلے وہاں آ جائے تو ان ٹائم بموں کو پھٹنے سے نہ روک سکے۔ میں نے ہنستے ہوئے اردو میں کہا، ویسے آپ سے مجھے قطعاً اس عقل مندی کی توقع نہیں تھی تاکہ پلوشا کی سمجھ میں میری بات نہ آ سکے۔ ویسے ممکن تھا کہ وہ اردو جانتی ہو، لیکن اس علاقے کی عمومی خواتین اردو زبان سے نابلد ہیں، اور پلوشا کے بارے میں میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ اردو زبان نہیں جانتی۔ میری بات پر اس نے کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا گمان یقین میں بدل گیا تھا، ورنہ سردار کے تسلی دینے اور معذرت کرنے کے بعد سے تو وہ ہر فکرے میں مجھے متون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سردار نے بھی جواب دینے کے لیے اردو زبان میں جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کتنے عقل مند ہو۔ اس کا ثبوت ایک بے قصور لڑکی کے زخمی جسم کی صورت میں میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے کہا، بہتر ہوگا کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اور میں اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ میں اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ سورج پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ ملگجے اجالے میں میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی ایسی حرکت نظر نہ آئی جو مجھے کسی حفاظتی انتظام کی ترغیب دیتی۔ یوں بھی حویلی میں آنے والوں کا دھیان اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ دشمن کس کو نقصان پہنچا کر وہیں بیٹھا نہیں رہتا۔ اندھیرا گہرا ہونے تک میں غار کے باہر ہی پھرتا رہا۔ اس دوران میں نے کافی لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی۔ گو موسم خوشگوار تھا، لیکن رات کے 2-3 بجے سردی بڑھ جاتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے لکڑی اکٹھی کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں لکڑیاں اندر لے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سردار غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ راجا صاحب، اگر چائے پینا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر سے آدھی لکڑیاں اٹھا کر کہا، ہاں چائے تو ضرور پیوں گا، تم ذرا لکڑیاں غار کے اندر لے جانے میں میری مدد کرو۔ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باقی لکڑیاں اٹھا لی۔ چولہے میں پہلے والی لکڑیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں مجھے پلوشا سلیپنگ بیگ میں گم نظر آئی۔ یہ مصیبت سو گئی ہے۔ میں اسٹیل کے کٹورے سے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ وہ بولا، ہاں میں نے اسے پین کلرز دے دیے ہیں۔ میں نے پوچھا، کہیں اسے میرے والے سلیپنگ بیگ میں تو نہیں سلا دیا؟ وہ بولا، مجبوری تھی یار، تمہارا سلیپنگ بیگ تھوڑا آرام دہ ہے۔ میں نے سوچا اس کی حیثیت ہمارے پاس مہمان کسی ہے، اور پھر یہ لڑکی بھی تو ہے۔ میں نے تلخ انداز میں قطع کلامی کی شکریہ، اور غار کی سنگلاخ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پلوشا کی گہری سانسیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اسے نیند آ گئی تھی۔ سردار پوچھنے لگا، ویسے راجے یار، تم ایسے چڑچڑے، بد اخلاق اور ظالم تو نہیں تھے؟ میں نے کہا، سردار خان، جانتے ہو میں نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ پلوشا کے نیند میں ہونے کے باوجود میں نے اردو زبان کو ہی ذریعہ اظہار بنایا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ مجھے اردو میں بات کرتے دیکھ کر اس نے بھی پشتو بولنے سے احتراز برتا تھا۔ میں نے کہا، یاد ہے جس دن امریکہ سے لوٹے تھے ہم کتنے خوش تھے؟ تمہیں چنارے بیگم کے پاس جانے کی جلدی تھی اور میں ماہین کے پاس جانے کو بےتاب تھا، اور اپنے دکھ سکھ کے ساتھی سے ملنے کی لگن ایسی تھی کہ ہم نے گھروں کا رخ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ بولا، ہاں ایسے لمحات بھولتے تو نہیں ہے یار۔ میں نے کہا، سردار، شہر سے میں نے اسپیشل ٹیکسی کروا کر گاؤں کا رخ کیا، اور پھر ابو جان کی نیند خراب نہ کرنے کا خیال سے میں دروازے پر دستک دینے کے بجائے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، اور جب لاتعداد خواہشوں، امنگوں اور محبت سے لبریز دل کے ساتھ اپنی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا تو خوابگاہ کی لائٹ جل رہی تھی اور میری بیوی اکیلی نہیں تھی۔ میری شریک حیات، میری لاڈلی بیوی، مجھ سے محبت کے دعوے دار، ہزاروں وعدے اور قسمیں کھانے والی ایک اور مرد کی آغوش میں پڑی تھی۔ سردار، تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس وقت مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس مرد کو قتل کروں، بیوی کی گردن اتاروں، دونوں کو زندہ زمین میں دفن کر دوں، یا خودکشی کروں؟ لیکن پھر میں نے ان میں سے کوئی کام نہ کیا اور ان دونوں کو اسی وقت گھر سے نکال کر بیوی کو طلاق دے دی۔ جینیفر کے بارے میں تم جانتے ہو کہ آخری دن تک وہ مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچاتی رہی۔ کس لیے؟ فقط اس لیے کہ میں ایک اچھا نشانے باز تھا اور اس کے سینئرز کو میری ضرورت تھی۔ یقین مانو اس کے بعد مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی، گھن آنے لگی اس ذات کی مکاریوں اور چال بازیوں سے۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن ابھی پچھلے دنوں رومانا نے اس نفرت کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ مجھے شادی پر اکساتی رہی۔ آخر کسی کی بیوی تو تھی نہ وہ۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہر وقت گردش کرتی رہتی۔ در حقیقت پلوشا کے چہرے میں مجھے ان تینوں خواتین کی جھلک نظر آئی، وہ تینوں جو مجھے پسند ہونے کے باوجود میرے لیے قابل نفرت ہیں۔ پلوشا ان تینوں سے خوبصورت ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی کا یوں بے راہ رو ہو جانا، قبیل خان جیسے شخص کی داشتہ ہونا میرے لیے اتنا تکلیف دہ اور افسوسناک تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے بھی تو مجھے حقیقت نہیں بتائی، چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ بعد میں میرا ندامت ظاہر کرنا یا معذرت کرنا کس کام آتا؟ تم نہیں جانتے اس معصوم لڑکی کو میں نے کس قدر زد و کوب کیا ہے، اس کے پھول سے گالوں پر کتنے تھپڑ مارے ہیں، اس کی ریشمی بالوں کو کس بے دردی سے کھینچا ہے۔ میں ایک لہجے کے لیے رکا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوا۔
उन तीनों खवातीन का बदला मैंने इसी से लिया है। इस सुलूक की हकदार वो तीनों थी, लेकिन इसका निशाना एक मासूम बन गई जो पहले से कबील खान जैसे गलीस की डसी हुई थी। सरदार ने गमगीन लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे दुख का इदराक है राजे। यकीनन एक मर्द के लिए सबसे अफसोसनाक और दुख देने वाली बात उसकी बीवी की बेवफाई होती है। यहाँ तक कि दुनिया भर की औरतों के साथ गलत ताल्लुक रखने वाला मर्द भी इस बात को गवारा नहीं करता कि उसकी बीवी किसी गैर की तरफ इल्तिफात रखे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तुमने जो कुछ किया जज्बात से मगलूब होकर किया, लेकिन बाद में उस मासूम लड़की की दिलजुई ही सही, उससे माजरत तो कर लेना थी। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता, किसी औरत से भी माजरत नहीं करूंगा। अब तो इस सिन्फ से मुझे नफरत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, इसका काम बनता था कि मुझे हकीकत बता देती। मेरी ज़हनी रूह फिर भटक गई थी। एक लम्हे पहले मैं उसे मासूम गर्दान रहा था, लेकिन जब सरदार ने माजरत की बात की तो मेरे अंदर वही औरत बेजार ज़ीशान जाग उठा। वो इसरार तर्क करता हुआ बोला, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, यूं भी इसने सुबह चले जाना है, बाद में ये जाने और कबील खान जाने, हो सकता है हमसे पहले वो उसी के हाथों निशाना बन जाए। मैंने भी फौरन मौजू बदल दिया। तय खाने में बारूद के अलावा कुछ नहीं था। उसने कहा, थोड़ा बहुत एमुनिशन पड़ा हुआ था, अलबत्ता मुझे अपने काम की कोई चीज नजर नहीं आई, और बारूद तो इतना ज्यादा था कि वो उस हवेली की कोई ईंट भी सलामत नहीं रहेगी। मैंने कहा, अपनी मुंह बोली भाई नुमा बहन को भी अच्छी तरह समझा देना, ये न हो हमसे अलहदा होते ही ये फिर उस हवेली में घुस जाए। सरदार बोला, तुम्हें बताते वक्त वो भी ये तफसील सुन रही थी, मुझे नहीं उम्मीद कि वो ऐसी गलती कर सकती है। मैंने कहा, मुमकिन है वो हमें धोखा दे रहे हो। यकीन मानो मैंने तो औरत के ऐसे ऐसे रूप देखे हैं कि अब किसी औरत पर एतबार करने को दिल नहीं चाहता। वो बोला, नहीं, उसकी बातों में हकीकत है। यूं भी ये जिस शीशे को तोड़कर कबील खान की ख्वाबगाह में घुसी है वो मैं देख कर आया हूँ। साफ नजर आ रहा था कि कोई शख्स वो शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ है। इसके साथ ये भी तो देखो कि बकौल तुम्हारे जब इसका और तुम्हारा सामना हुआ उस वक्त तुम दोनों एक दूसरे के वजूद से बेखबर थे, तो ऐसी हालत में उसे अपने हाथों में क्लैशनकोफ लेकर घूमने की क्या जरूरत थी। 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़ेह है कि वो खुद तुम्हारी तरह हवेली वालों की दुश्मन थी, और सबसे बढ़कर ये बात कि तुमने उससे कबील खान की जात के मुताल्लिक कोई सवाल किया ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा ज्यादा तरफदारी की जरूरत नहीं, मुझे यकीन आ गया है कि वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है। अब जाओ आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। वो उठकर अपने थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। ठीक है यार, जब नींद आने लगे तो मुझे जगा देना। सरदार लेटने के चंद लम्हों बाद ही सो गया। दिन भर की भाग दौड़ के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बैठे हुए न जाने कौन कौन से ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। माहीन की बेवफाई, जेनिफर का दोगलापन, रोमाना की बेवकूफी, अब्बू जान की बहू और बच्चे की ख्वाहिश, फुप्पो जान, अपने मौजूदा हालात, अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचाने वाला उस्ताद सादिक, मुझे स्नाइपर और हथियारों की समझबूझ अता करने वाला राव तसव्वुर उस्ताद उमर दराज, अपना यार उवैस, और फिर अजीबो गरीब किरदार की मालिक पलवशा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि फजाओं का सीना चीरती हुई अजान की पुरनूर आवाज मेरे कानों में पहुंची। गर्म चादर अपने बदन के गिर्द लपेटता हुआ मैं गार से बाहर निकल आया। पानी की 4 खाली बोतलें भी मैंने हाथ में पकड़ ली थी। 600-700 गज के फासले पर चश्मा मौजूद था। ठंडे पानी से वुजू करके मैंने बोतलें भरी और गार में वापस लौट आया। आग कब की बुझ चुकी थी। सरदार के लेटने के बाद मैंने आग जलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस वक्त अच्छी खासी खुनकी महसूस हो रही थी। चूल्हे में लकड़ियां रख कर मैंने लाइटर से आग जलाई और चादर बिछाकर नमाज अदा करने लगा। नमाज भी अजीब शान वाली इबादत है। लगता है इंसान ने अपने रब से मुलाकात कर ली हो। सारी दुनिया से अपने दुख दर्द छुपाने वाला इंसान अपना एक एक गम, कमी, परेशानी अपने रब की बारगाह में बयान करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करता। मैंने भी दुआ के लिए हाथ उठाते हुए अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, मुसीबतें अपने मालिक के हुजूर रख दी। चादर झाड़कर मैंने थैले पर रखी और चाय बनाने लगा। उसी वक्त सरदार की नींद से बोझल आवाज मेरे कानों में पड़ी, क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा, अगर कोशिश करो तो नमाज पढ़ सकते हो। स्लीपिंग बैग की जंजीर खोलकर वो बाहर आया। मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही थी। वो बोला, अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, और वो गार से निकल गया। उसकी वापसी तक मैं चाय बनाकर पी भी चुका था। वो नमाज चश्मे के किनारे ही पढ़कर लौटा था। अपने लिए गिलास में चाय डालकर उसने थैले से बिस्किट निकाले और नाश्ता करने लगा। अब क्या इरादा है? बिस्किट को दांतों से काट कर उसने चाय का बड़ा सा घूंट लिया। मैंने कहा, चाय पी कर निकलते हैं ताकि धमाके होने के बाद हम इस इलाके से काफी दूर जा चुके हों। उसने कहा, ठीक है, और उसने सोई हुई पलवशा को आवाज दी, पलवशे। स्लीपिंग बैग से बरामद होते हुए उसने तौबा शिकन अंगड़ाई ली, जी भाई। सरदार ने पानी की बोतल उसकी जानी बढ़ाकर कहा, मुंह हाथ धो लो। पानी की बोतल लेकर वो लंगड़ाते हुए गार से बाहर निकल गई। उसकी लंगड़ाहट में भी एक खास किस्म की रवानी नजर आ रही थी। मर्दाना कमीज उस पर काफी खुली थी, लेकिन वो बेढंगा लिबास भी उसकी खूबसूरती को नहीं गहना सका था। ये कहना बेजाना होगा कि वो लिबास किसी भी फैशनेबल से ज्यादा उस पर जच रहा था।
हाथ मुंह धोकर वो अंदर आई और मेरी चादर उठाकर चेहरा खुश करने लगी। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, वैसे इतना इखलाक इंसान में होना चाहिए कि किसी चीज के इस्तेमाल से पहले मालिक से इजाजत ले। वो बोली, हाँ ये रेशम कम ख्वाब की चादर है ना, तो यूं फप्तियां कस रहे हो, और बिलफर्ज मैंने ये गंदी चादर इस्तेमाल कर भी ली तो तुम्हें ही इखलाक का मुजाहरा कर लेना चाहिए था। ये कहते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई, सरदार भाई अगर पानी की और बोतल मौजूद है तो मैं दोबारा हाथ मुंह धोना चाहूंगी। वो बोला, पलवशे बेवकूफों की बात न करो और चाय पियो। वो बोली, अगर चाय इसने बनाई है तो मुझे न बताना वरना मैं पी नहीं सकूंगी। ये कहकर वो चौकी के करीब आकर बैठ गई। उसने चुप रहना तो सीखा ही नहीं था। अजीब बदमिजाज, झगड़ालू और बातूनी लड़की थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं ये कह भी देता कि वो चाय मैंने बनाई है तब भी वो चाय पीने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। सरदार ने चाय का ग्लास भरकर उसकी जानिब बढ़ाया और साथ 3-4 बिस्किट भी उसके हाथ में पकड़ा दिए। आम बिस्किटों के बरअक्स ये काफी मोटे और लंबे बिस्किट थे। 3-4 बिस्किट खाकर आदमी पूरा दिन मजीद कुछ खाए बगैर आराम से गुजार सकता था। चाय में डुबोकर बिस्किट खाते हुए उसके जबड़ों पर कोई जोर नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सारे बिस्किट खा गई। उसके चाय पीने तक हम अपना सामान समेटकर सफरी थैलों में डाल चुके थे। कबील खान के आदमियों से छीनी हुई फोल्डिंग बट की क्लैशनकोफें भी हमने थैलों में ही डाल ली थी। पलवशा की क्लैशनकोफ उसकी जानिब बढ़ाते हुए सरदार ने पूछा, तुमने कहाँ जाना है? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, फिलहाल तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मैंने बिफर कर कहा, ऐसा सोचना भी मत। वो बोली, मैं सोचने में वक्त जाया नहीं करती, जो करना हो कर गुजरती हूँ। वैसे भी मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं अपने भाई को बता रही हूँ। मैं ड्रैगन ऑफ राइफल कंधे पर उठाकर चल पड़ा। ठीक है, जाओ अपने भाई के साथ। सरदार ने लजाजत भरे लहजे में मुझे आवाज दी, यार राजे बात तो सुनो। मैंने रुककर उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, जी खान साहब। वो मुल्तजी हुआ, अंगूर अड्डे तक तो ये हमारे साथ जा सकती है ना? उसने उर्दू में बात की थी, इसलिए मैं भी उर्दू में ही जवाब दे रहा था। हम अंगूर अड्डे नहीं जा रहे। वो बोला, तो कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, रखजई। सरदार ने कहा, तो ये वहां तक चली जाएगी? मैंने पूछा, उसके बाद क्या होगा? वहां से उसकी मर्जी, जहां जाना चाहे। वो बोली, तुम किसी मुस्तनद डॉक्टर से मेरा इलाज कराओगे, मुझे नया लिबास खरीद कर दोगे, उसके बाद शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। उसकी बात से मुझे अंदाजा हो गया कि वो उर्दू जबान ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानती थी। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा, लेकिन उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। बहुत ही निडर, बेबाक और बेपरवाहना अंदाज की मालिक थी वो। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होता था कि वो 17-18 साल की दोशीज़ा है। इसके बरक्स वो पुरएतमाद और हौसलामंद मर्द लगती। यकीनन कम उम्री में ही उसने हालात से मुकाबला करना सीख लिया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर चल पड़ा। गार से निकलते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई, एक मशवरा था सरदार भाई। उसकी आवाज बहरहाल इतनी ऊंची थी कि मेरे कानों तक पहुंच गई। सरदार ने कहा, बोलो। उसने कहा, यहाँ से रिखजई का फासला करीबन 20-22 किलोमीटर होगा और तमाम रास्ता पहाड़ी है। शायद शाम की अजान हमें रास्ते में ही हो जाए। इसके बरक्स अंगूर अड्डे का फासला 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा और वहां से रिखजई के लिए वैगन वगैरह भी मिल जाएगी। उसका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं था। यूं भी वहां से रिखजई जाने का इरादा मैंने इसलिए किया था कि मेरी नजर में अंगूर अड्डे के मुकाबिल रिखजई नजदीक था। मैंने पलवशा की बजाय सरदार को कहा, अंगूर अड्डा 5-6 किलोमीटर के फासले पर कैसे हो सकता है, जबकि आते वक्त हमें 13-14 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। सरदार जवाब देने की बजाय पलवशा की जानिब देखने लगा। वो बोली, तुम लोग खड़कले वाली सड़क पर चल कर आए हो, वो गाड़ी का रास्ता है, वरना पैदल जाने के लिए 5-6 किलोमीटर से ज्यादा फासला नहीं। मैंने फिर सरदार को मुखातिब किया, किस तरफ जाना होगा? वो सरदार के पूछने का इंतजार किए बगैर घोड़े की जीन नुमा एक पहाड़ी की जानिब इशारा करते हुए बोली, हमें उस पहाड़ी के दाएं किनारे की सीध लेना होगी। मैं कोई तबसरा किए बगैर मतलूबा जानिब मुड़ गया। वहां तक हमें पौन घंटा लग गया था। पहाड़ी के करीब पहुंचते ही उसने कहा, पहाड़ी के दाएं ढलान पर होकर आगे बढ़ते जाइए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो ढलान उबूर करके हम एक नाले में उतर गए। 20-25 मिनट उस नाले में चलने के बाद वो नाला अंग्रेजी के हर्फ वाई की तरह 2 शाखों में बट गया। नाले के संगम पर मुझे रुकते देखकर उसने बाआवाज़ बुलंद पुकारा, बाएं जानिब। उस वक्त सरदार मेरे साथ चल रहा था। वो हमसे चंद कदम पीछे चलते हुए शायद कुछ गुनगुना रही थी। हम जूं ही बाएं जानिब मुड़े, उसने दोबारा आवाज दी, सरदार भाई। सरदार के साथ बेख्तियार मैं भी मुड़कर उसकी जानिब देखने लगा। उसने शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। ये कहते हुए वो एक पत्थर की चट्टान के पीछे गायब हो गई। हम चंद कदम आगे चलकर 2 साफ पत्थरों पर बैठ गए। सरदार ने मौजूए गुफ्तगू तब्दील किया, राजे एक बात कहूं, इससे पहले हम डी ब्लॉक जाकर वहां से बैरेट M107 को लाने की बात कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि मेजर औरंगजेब ने अब तक उसका एमुनिशन मंगवा लिया होगा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे ना कहने से तुमने कौन सा बाज आना है? वो बोला, मुझे लगता है पलवशा तुम्हारी जात में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने कहा, खान साहब, पहली बात ये तुम्हारा जहनी खिलजान है, और दूसरा इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस मौजू पर कोई गुफ्तगू न सुनूं। सरदार को मेरी बात खासी महसूस हुई थी। बोला, इसमें मिर्चें चबाने की क्या जरूरत है? मैंने ये तो नहीं कहा कि उसे अपना लो।
मैंने कहा औरत जात मेरे लिए कितनी काबिल नफरत है इसका अंदाजा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। वो बोला अच्छा ठीक है यार, इस मौजू को छोड़ो। यूं भी तुम में पहले वाले हंसमुख, इखलाकी और ठंडे मिजाज वाले जीशान की कोई बात बाकी नहीं रही। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अपनी बाजी साहब को साथ लेते आना। और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद अंगूर अड्डे तक मेरे करीब नहीं आया था। वो और पलवशा 20-25 कदम का फासला रखकर मेरे पीछे पीछे चलते रहे। वो नाला बतदरीज गहराई में उतरता चला गया। नाले के इख्तिताम पर पहाड़ी खत्म हो रही थी और किलोमीटर भर के फासले पर अंगूर अड्डे की आबादी नजर आ रही थी। बिलाशुबा पलवशा हमें निहायत मुख्तसर रास्ते से वहां तक ले आई थी। आबादी शुरू होते ही वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ गए। मुसलसल चलने की वजह से पलवशा की चाल में भी लंगड़ाहट कम हो गई थी। सरदार ने मेरे करीब आते ही पूछा, कमांडर नसरुल्लाह खान खोजल खेल की बैठक में बैठ जाएं। मैंने कहा जी हाँ, और मोहतरमा को अब खुदा हाफिज कह दो। वो बोला अगर मैं सिफारिश करूं कि सुबह तक ये हमारे साथ रहेगी। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। सरदार ने दुख भरे लहजे में कहा, यार मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं मुंह बोली बहन को 1-2 रातें अपने पास रख लूं। मुझे एहसास हुआ कि पलवशा के बारे में मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त रवैया रखा था, इतना कि उसकी दुश्मनी में सरदार की दोस्ती को भी पसे पुष्ट डाल रहा था। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मुसिर हो तो सुबह आखिरी हद है, उसके बाद अगर तुमने इसरार किया तो मैं खुद चला जाऊंगा। उसने कहा मैं जानता हूँ। पलवशा हमारी गुफ्तगू से अनजान बनी दाएं बाएं का जायजा ले रही थी। कमांडर नसरुल्लाह खान की बैठक की तरफ जाते हुए उसने सरदार से चादर लेकर मफलर की तरह अपने चेहरे के गिर्द लपेट ली। मुझे लगा वो किसी से अपनी शक्ल छुपाना चाह रही है। उसका अंदाज मुझे काफी मशकूक लगा था, लेकिन मैंने कुछ कहने से गुरेज किया था। बैठक को ताला लगा था जिसकी एक चाबी हमारे पास भी थी। ताला खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। दरवाजा कुंडी करते ही उसने चेहरे के गिर्द लपेटी चादर खोल ली। सरदार ने कहा मेरा ख्याल है कमांडर नसरुल्लाह को तकलीफ देने की बजाय बाजार से खाना मंगवा लेते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, अगर उसे मालूम हो गया तो वो बहुत बुरा मनाएगा। उसने सवालिया अंदाज में कहा तो मैंने कहा तो ये कि उसे बुला लेते हैं। ये कहकर मैंने बैठक से बाहर निकलकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला वो खुद था। पुरतपाक मुआनके के बाद उसने मेरी खैर खैरियत पूछी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा मेरा ख्याल है खाना ले आऊं। मैंने कहा जी हाँ, अगर तैयार है तो। उसने कता कलामी करते हुए कहा बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है। उसने खुशी का इजहार किया, खुशामदीद, मेरी खुशकिस्मती। बैठक में आकर मैंने सरदार को कमांडर नसरुल्लाह की आमद का बताया। पलवशा ने एक मर्तबा फिर चेहरे के गिर्द चादर लपेट ली। मेरी तरह सरदार को भी उसका ये फेल अजीब लगा था। वो पूछे बिना नहीं रह पाया था। चेहरा छुपाने की क्या जरूरत आन पड़ी। वो बड़े इत्मीनान से बोली, क्योंकि कमांडर नसरुल्लाह मेरा उस्ताद है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पहचान ले। सरदार ने हैरानी से पूछा, उस्ताद? पलवशा ने जवाब देने से गुरेज किया, लंबी कहानी है। उसी वक्त कमांडर खाने के बर्तन लिए नमूदार हुआ। पलवशा नजर झुकाकर नीचे देखने लगी। सरदार से हाथ मिलाकर कमांडर नसरुल्लाह ने उसकी जानिब भी हाथ बढ़ा दिया था। उससे हाथ मिलाते हुए भी पलवशा ने अपनी नजरें झुकाए रखी थी, लेकिन कमांडर नसरुल्लाह ने उस बात पर ध्यान दिए बगैर कहने लगा, आप लोग खाना खाएं, मैं कहवा लेकर आता हूँ। मैंने कहा आप भी हमारे साथ शामिल होना। उसने कहा नहीं, मैं खा चुका हूँ, दिन का खाना मैं 10 बजे तक खा लेता हूँ। और वो बाहर निकल गया। पलवशा के जबड़ों में अभी तक दर्द हो रहा था। वो बमुश्किल आधी रोटी चबाकर पीछे हो गई। सरदार को भी मालूम था कि उसने खाने से क्यों हाथ खींचे हैं। खामखा की बदमज़गी से बचने के लिए उसने पलवशा से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हमारे खाना खाने तक कमांडर नसरुल्लाह कहवा ले आया था। हमारे लिए प्यालियों में कहवा उंडेल कर उसने बर्तन समेटे और दोबारा बाहर निकल गया। उसके वापस आने तक हम कहवे की प्यालियां खाली कर चुके थे। उसने पूछा, कुछ और चाहिए? उसके अंदाज से जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पलवशा को पहचान गया है, इसीलिए वो उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। अब ये बात मुझे वाज़ेह नहीं थी कि आया वो पलवशा को बतौर पलू खान के जानता था या उसकी पलवशा वाली असलियत से वाकिफ था। अगर वो असलियत से वाकिफ होता तो कभी भी उससे हाथ न मिलाता। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, अलबत्ता ये अपने साथ लेते जाएं। मैंने अपने और सरदार के थैलों से क्लैशनकोफे निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दी। उसने पूछा, इनका क्या करना है? मैंने कहा ये माल गनीमत है, हमने कबील खान के आदमियों से छीना है, मजीद कमांडर अब्दुल हक से पूछ लेना। उसने कहा समझ गया। तीनों हथियार और कहवे के बर्तन उठाकर वो बैठक से निकल गया। चारपाई पर लंबा होते हुए मैंने सरदार को कहा, मुझे तो सख्त नींद आ रही है, अगर तुमने भी लेटना है तो दरवाजा अंदर से कुंडी कर देना। सरदार ने कहा, नहीं, हम जरा बाजार तक जा रहे हैं। ठीक है कहकर मैंने आंखें बंद कर ली और चंद लम्हों में मैं गहरी नींद सो गया। मेरी आंख दरवाजा खुलने की वजह से खुली थी। इससे पहले कि मैं उठकर आने वाले का जायजा लेता, मेरे कानों में सरदार की आवाज पड़ी। वो पलवशा को कोई बात कह रहा था। उठने का इरादा तर्क करके मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। चारपाई की चिरचिराहट के साथ पलवशा की आवाज उभरी, आपका दोस्त तो अभी तक नहीं जागा।
सरदार बोला, सारी रात जागता रहा है, 5-6 घंटे तो सोएगा। पलवशा की आवाज में हैरानी थी, सारी रात क्यों जागता रहा है? सरदार ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा, मालूम नहीं। वो बोली, अच्छा भाई, मेरी दरखास्त पर गौर किया कि नहीं? वो बोला, देखो पलवशे, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें बता चुका हूँ, अगर ये मुमकिन होता तो मुझे भला क्या मसला था। वो बोली, इसमें नामुमकिन की क्या बात है? अगर आप कहें तो मैं आपके दोस्त से बात कर लेती हूँ, बल्कि मैं कबील खान की मौत के बाद इसे कत्ल करने का इरादा भी मुलतवी कर दूंगी। सरदार ने उसे झिड़का, तुम्हारी इन्हीं बातों से वो चिढ़ता है। वो बोली, भाई यकीन करो, मेरी वजह से आप लोगों को सहूलत ही मिलेगी। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करूंगी। सरदार ने उसके इसरार से तंग आकर मौजू तब्दील करने की कोशिश की। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि कमांडर नसरुल्लाह तुम्हारा उस्ताद कैसे हो गया? पलवशा ने इस मौजू से पहलू तही करना चाही। भाई कहा तो था, लंबी कहानी है। सरदार मुसिर हुआ तो मुख्तसर करके सुना दो। वो बोली, अबू जान कबील खान का लश्करी था। उस वक्त कबील खान असलहे और मनशियात की स्मगलिंग करता था। एक दिन उस खबीस की नजर मेरी बहन पर पड़ी। वो उस वक्त 17 साल की थी और खुद से 4 साल छोटे भाई के साथ बकरियां चरा रही थी। उस पर नजर पड़ते ही कबील खान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मेरी बहन को पकड़कर गाड़ी में डाल लें। 2 आदमियों ने मेरी मासूम बाजी को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में घुसेड़ दिया। भाई उस वक्त थोड़ी दूर खड़ा था। बाजी को बचाने के लिए वो दीवाना वार भागा। उसके करीब पहुंचते तक गाड़ी आगे बढ़ गई थी। उसने चलती गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, मगर एक जालिम ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। हमारी बदकिस्मती के नीचे गिरते हुए भाई का सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे सबसे पहले एक मोटर सवार ने देखा जो गांव से गुजरकर अंगूर अड्डे जा रहा था। भाई का लहू लुहान जिस्म देखते ही वो लोगों को इत्तला देने के लिए वापस पलटा, मगर जब तक लोग उसके पास पहुंचे वो बाकी नहीं रहा था। अबू जान उस वक्त पंजाब गए हुए थे। घर में मैं और अम्मी जान अकेली थी। लोग जब भाई की लाश उठाकर लाए तो घर पर गोया कयामत टूट पड़ी। भाई की मौत के साथ हमें बाजी के गायब होने की फिक्र खाई जा रही थी, और ये फिक्र अबू जान की वापसी से पहले एक और कयामत की सूरत में जाहिर हुई। भाई की मौत के चौथे दिन हमें बाजी की लाश भी मिल गई थी। इस तरह के मरने से पहले वो कई अफराद की दरिंदगी का शिकार हुई थी। अबू जान वापस आए तो कई दिन तक इस सदमे से बाहर ना सके। उसके बाद उन्होंने कातिल की तलाश की कोशिशें शुरू कर दी। कबील खान के मुहाफिजों में अबू जान का एक दोस्त शामिल था। उसने अबू जान को असल वाक़े की इतला दे दी। यूं भी अबू जान को पहले से कबील खान पर शक था, क्योंकि उसकी दरिंदगी का शिकार होने वाली बाजी पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले भी कई लड़कियां उसकी हवस की भेंट चढ़ चुकी थीं। जवान बेटे की मौत और मासूम बेटी के साथ होने वाले दरिंदगी भरे सुलूक ने अबू जान को कुछ सोचने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो क्लैशनकोफ उठाकर कबील खान के खिलाफ चढ़ दौड़े, मगर वो खबीस तैयार था। उसके मुहाफिजों ने अबू जान को उस तक पहुंचने के लिए जिंदा न छोड़ा, और यूं हमारा भरा पूरा घर एक जालिम की हवस का शिकार हो गया। मैं उस वक्त 9 साल की थी। मुझसे 2 छोटे भाई पैदा होने के साथ ही फौत हो गए थे। गोया अबू जान की वाहिद वारिस मैं थी। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त भी अम्मी जान उम्मीद से थी। हम अलाम खेल छोड़कर अपने रिश्ते के मामू के पास चले गए। उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान से था। तहरीक तालिबान से मेरी मुराद मुजाहिदीन तालिबान से है। उस वक्त तक नकली और दहशतगर्द तालिबान अभी तक पैदा नहीं हुए थे। मामू जान जो अम्मी जान के चचाजाद भाई थे, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अम्मी जान ने मामू जान से दरखास्त की कि मुझे इस काबिल बना दें ताकि मैं अपने बाप भाई और बाजी के कत्ल का बदला ले सकूं। अम्मी जान की वाहिद उम्मीद मैं ही थी। गो चंद माह बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक और भाई के तोहफे से नवाजा, मगर वो अभी तक 8 साल का बच्चा है। मामू जान ने साफ इनकार कर दिया कि मुजाहिदीन के कैंप में किसी लड़की को तरबियत नहीं दी जाती। तब अम्मी जान ने इल्तिजा की कि वो मुझे लड़के के रूप में साथ ले जाएं। हमारे साथ होने वाला जुल्म ऐसा नहीं था कि मामू जान अम्मी जान की इल्तिजा टाल सकते। वो मुझे लड़का बनाकर साथ ले गए। अब्बू जान, बाजी और भाई की मौत ने मुझे भी सरापा इंतकाम बना दिया था। मैं लड़का बनकर तरबियत हासिल करती रही। वहाँ हमें दीनी और दुनियावी तालीम के साथ लड़ने भिड़ने की तरबियत भी दी गई। कमांडर नसरुल्लाह साहब भी मेरे उस्तादों में थे। वो हमें मुख्तलिफ किस्म के हथियारों की तरबियत देते थे। पिछले 2-3 साल से मेरे अंदर बतदरीज ऐसी जिस्मानी तब्दीलियां वकू पजीर होने लगी कि मेरा मर्दों के दरमियान रहना मुश्किल हो गया था। अपने जिस्मानी खतूत छुपाने के लिए मुझे खुले लिबास का सहारा लेना पड़ता। हाथापाई की तरबियत से भी मैं एहतराज बरतने लगी थी, और अब 3 माह हो गए हैं कि मैंने मुजाहिदीन का कैंप छोड़कर घर चली गई हूँ। वो खबीस अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, जबकि मैं उसके खिलाफ अकेली हूँ। लड़के के रूप में मैंने उसके 2-3 करीबी मुहाफिजों से दोस्ती गांठ ली। उन्हीं की वसातत से मुझे उस खबीस के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात मिल जाती है। मुजाहिदीन के पास आने के बाद से मैं मुसलसल किसी मौके की तलाश में हूँ, और यही वजह है कि एक मजबूत सहारा समझते हुए मैं आपसे दरखास्त कर रही हूँ कि मुझे अपने साथ रहने दो। कम से कम कबील खान की दुश्मनी की मजबूत वजह हमारे दरमियान मुश्तरक है। मुकम्मल तफसील बताते हुए आखिर में वो अपनी पुरानी दरखास्त दोहराना नहीं भूली थी। सरदार ने मानी खेज लहजे में पूछा, हमारी कबील खान से दुश्मनी की वजह मालूम है? उसने नफी में कहा, नहीं।
यूं भी मैं वजूहात की तलाश में वक्त बर्बाद नहीं करती। सरदार ने इंकशाफ करते हुए कहा, हमारा ताल्लुक पाक आर्मी से है और कबील खान एक दहशतगर्द है। उसके ताल्लुकात मुल्क दुश्मन अनासिर से भी हैं। हमारी और उसकी दुश्मनी की वाहिद वजह यही है। क्या? उसके लहजे में हद दर्जे की हैरानी भरी थी। कहीं आप दोनों वही तो नहीं जिन्होंने पिछले दिनों कबील खान के 2 दर्जन से भी ज्यादा आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ उसके सबसे अहम कमांडर रोशन खान को लंगड़ा कर दिया? सरदार ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? वो बोली, बताया तो है, उसके चंद करीबी आदमियों से भी थोड़ी बहुत दोस्ती गांठ रखी है। गो वो भी मेरी शक्लो सूरत की वजह से नरम रवैया रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ न कुछ उगलवा लेती हूँ। और जहाँ तक कबील खान की हालिया हजीमत का ताल्लुक है तो उससे तो आम लोग भी वाकिफ हैं। खासकर SS ने जो रोशन खान को जिंदगी की भीख दी थी उसका तो बहुत चर्चा हुआ है। यकीनन SS आप ही होंगे, उसने आखिरी फिक्रा इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। सरदार ने कहा, नहीं, SS मेरा दोस्त है। ऐसा कहते हुए सरदार के लहजे में शामिल फख्र का मादा उसके मुखलिस होने की निशानदही कर रहा था। उसे वाकई अपने दोस्त पर फख्र था। वो बोली, आप अब भी अपने फैसले पर कायम हैं? सरदार ने कहा, पलवशे, मैंने तुम्हें बहन कहा है, मुझसे जितना हो सकता मैंने कर दिया। यकीन मानो इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। मैं जीशान को खफा नहीं कर सकता। यूं भी अगर वो इस बारे में किसी सीनियर को मुत्तला कर दे तो मेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में हवालात की भी हवा खानी पड़ेगी। वो बोली, पता नहीं तुम्हारे दोस्त को मुझसे क्या चिढ़ है। अजीब अहमक इंसान है, मुझे बेगुनाह पीटता भी है और अब मूड भी वही बना रहा है। सरदार को यकीनन उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। इस मौजू को रहने दो। वो बोली, भाई खफा न हूं तो एक बात पूछूं? सरदार ने बगैर तरद्दुद के कहा, पूछो। उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा, क्या सारी लड़कियां माहीन की तरह होती हैं? सरदार हकला गया, तुम माहीन को कैसे जानती हो? खुद मैं भी हैरानी में डूब गया था। वो बोली, कल आप दोनों मुझे सोया हुआ समझकर जो बातें कर रहे थे मैंने सारी सुन ली थी। आइंदा उर्दू में बात करते वक्त ये याद रखना कि मैं भी उर्दू जबान अच्छी तरह जानती हूँ। उसने कहा, अच्छा, अब इस मुताल्लिक जबान से एक लफ्ज न निकालना। तुमने सुबह चले जाना है और मैंने जीशान के साथ इकट्ठे रहना है। मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए। वो बोली, सुबह नहीं भाई, मैं अभी रुखसत हो रही हूँ। मैंने सोचा था कि शायद हम मिलकर कबील खान को फना कर देंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ ही कबूल नहीं तो जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती। उसके लहजे में मायूसी कूट कूट कर भरी थी। सरदार ने कहा, बहन, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं तुम्हें दूसरी बार कहने का मौका न देता। वो बोली, ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। सरदार को कहकर वो मुझे मुखातिब हुई, राजा जीशान हैदर साहब, खुश हो जाओ, मैं जा रही हूँ। मैंने उसकी बात सुन ली मगर मैं सोता बना रहा। सरदार ने कहा, पलवशे, उसे जगाने की जरूरत नहीं। वो मुसिर हुई, नहीं भाई, मैं देखना चाहती हूँ आखिर इसे मेरे जाने की कितनी खुशी होती है। ये कहते हुए उसने मेरे पाँव को पकड़कर हिलाया। मजबूरन मुझे उठने की अदाकारी करना पड़ी। चेहरे पर से चादर उठाते हुए उसकी जानिब देखा। वो क्लैशनकोफ कंधे से लटकाए खड़ी थी। उसके बदन पर नया लिबास नजर आ रहा था। गालिबन वो कपड़े उसे सरदार ने खरीद कर दिए थे। वो बोली, मोहतरम खुश हो जाएं, मैं वादे के मुताबिक जा रही हूँ। सरदार भाई ने मुझे नए कपड़े भी दिला दिए हैं और डॉक्टर से दवाई भी ले दी है। मैं जमाई लेता हुआ बोला, मेरी खुशी दुगनी हो जाती अगर सरदार मुझे जगाकर ये खुशखबरी सुनाता कि आप तशरीफ ले जा चुकी हैं। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए शरारती लहजे में कहा, मुझे रोकोगे नहीं? लेकिन ये शरारत उसके लहजे तक महदूद थी। उसकी आंखों की गहराई में कोई और जज्बा पोशीदा था जिसकी तौजीह से मैं कासिर था। शायद ये इल्तिजा थी, उम्मीद थी, भरोसा था या कोई शिद्दत भरी ख्वाहिश थी। मैंने कहा, मेरे रोकने से तुम रुक जाओगी? वो बोली, कह कर देख लो। मैंने कहा, ठीक है, ना जाओ। उसके चेहरे पर मुसर्रत भरे आसार नमूदार हुए, लेकिन ये न समझना कि इस तरह मैं तुम्हें कत्ल करने का इरादा तर्क कर दूंगी। क्लैशनकोफ कंधे से उतार कर वो चारपाई पर बैठ गई। सरदार ने खफकी भरे लहजे में कहा, मेरे कहने पर तो एक रात के लिए राजी नहीं हो रहे थे और पलवशा के कहने पर मुस्तकिल साथ रख लिया। मैंने एहसान झाड़ते हुए फौरन कहा, हाँ, क्योंकि तुम यही चाहते थे और मैं तुम्हें खफा नहीं कर सकता था। सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरी खफगी का, और मैंने उसे जवाब दिए बगैर दोबारा अपने मुंह पर चादर डाल ली। पलवशा सरदार को अपनी जाने मुतवज्जे करके दोबारा चहकने लगी। सरदार भी मेरे फैसले से खुश हो गया था। यकीनन वो उस मजलूम लड़की की मदद करना चाह रहा था। अचानक मेरे कानों में जोरदार धमाके की आवाज आई। मैं बेख्तियार उठ बैठा। सरदार ने फौरन कहा, ले जी, कबील खान की बर्बादी का आगाज हो गया है। वैसे काफी जोरदार धमाका था कि आवाज यहाँ तक पहुँच गई। सरदार ने कहा, बारूद ही इतना ज्यादा था, धमाका तो होना था। पलवशा ने खुशी का इजहार करने में देर नहीं लगाई थी। मुझे तो बहुत सुकून महसूस हो रहा है। उन्हें बातें करता छोड़कर मैं एक बार फिर लेट गया और उनकी बातें सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई। शाम की अजान हो रही थी जब सरदार ने मुझे जगाया। राजे, उठ जाओ यार, शाम की अजान हो रही है। और मैं अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। रात का खाना हमने लालटेन की रोशनी में खाया और खुशबूदार कहवा पीकर दोबारा लेट गए। सरदार और पलवशा तो चंद मिनट गपशप करके सो गए थे, लेकिन मुझे रात गए तक नींद ना सकी। मैं मौजूदा हालात पर गौर करता रहा। पलवशा जोर जबरदस्ती से हमारे साथ शामिल हो गई थी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे मजबूरन उसे साथ रहने की इजाजत देना पड़ गई थी। यूं भी वो उसी इलाके की थी और मुझे उम्मीद थी कि उसका साथ हमारे लिए फायदेमंद ही होना था।
यूं ही पलवशा के बारे में सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह नाश्ते के बाद हम डी ब्लॉक जाने के लिए तैयार थे। नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कमांडर नसरुल्लाह ने कहा, पल्लू खान, कोशिश करना कि इन लोगों का साथ न छोड़ना। पलवशा ने घबरा कर कहा, जी उस्ताद जी। उसका चेहरे के गिर्द चादर लपेटना काम नहीं आ सका था। कमांडर नसरुल्लाह ने उसे आसानी से पहचान लिया था। बेटे, मैं तुमसे मुजाहिदीन का साथ छोड़ने की वजह तो नहीं पूछना चाहता, लेकिन इतना याद रखना, जाती लड़ाई से ज्यादा अल्लाह पाक के रास्ते में लड़ने की अहमियत होती है। उसने इस बात में सर हिला दिया। आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी, लेकिन बाज औकात इंसान किसी के जुल्म और ज्यादती का ऐसा डसा होता है कि वो इंतकाम के अलावा किसी काम के काबिल नहीं रहता। वो बोले, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, और पलवशा के सर पर हाथ रखते हुए वो बाहर निकल गया। उसके साथ बात करते वक्त पलवशा का लहजा काफी भारी और मर्दाना सा महसूस हुआ था। यकीनन वो अपनी आवाज को भारी बनाकर बात कर रही थी। 9-10 साल की उम्र से वो लड़का बनकर रहती थी। इतनी मश्क तो उसे हो गई थी कि कोई उसे आवाज से न पहचान सके। अलबत्ता उसके नैन नक्श किसी के दिल में भी शक का बीज बो सकते थे। सरदार ने कमांडर नसरुल्लाह को बैठक से निकलते ही कहा, तुम्हारा चेहरा छुपाना तो किसी काम नहीं आ सका। वो बोली, भाई मैंने अपनी सी कोशिश तो की थी, लेकिन उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है, और मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे कल ही पहचान लिया था। सरदार ने पूछा, क्या उन्हें ये मालूम है कि तुम लड़की हो? पलवशा ने नफी में सर हिलाया, नहीं। सरदार मुझे मुखातिब होकर बोला, पलवशा बहन ने मुजाहिदीन के साथ लड़का बनकर तरबियत हासिल की है और कमांडर नसरुल्लाह उसका उस्ताद है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मुझे इस औरत के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो कहाँ खामोश रहने वाली थी, फौरन बोल उठी, मैं औरत नहीं लड़की हूँ, बल्कि तुम जैसों के लिए तो लड़का हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, लड़कियां तुम्हारी तरह बदशक्ल नहीं होती। वो बोली, अच्छा, परसों गार में तो तुम कुछ और फरमा रहे थे कि मेरे चेहरे पर तुम्हें अपनी तीनों पसंदीदा तरीन खवातीन की झलक नजर आ रही थी, बल्कि उनसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बगैर लगी लिपटी रखे वो उस दिन की बात उगलते हुए सरदार की तरफ मुड़ी। भाई, इसने ऐसा ही कुछ कहा था ना? सरदार कहका लगाकर हंसा, हाँ, कुछ ऐसा ही। चलो। खिसियाते हुए मैंने अपना सफरी थैला कंधों से लटकाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस चालाक और बेबाक लड़की की बातों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। लिहाज रखना तो उसे आता ही नहीं था। उसने शोखी भरे लहजे में पूछा, वैसे सच बताओ राजा साहब, उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अभी? मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए चलता रहा। सरदार ने मौजू तब्दील करते हुए पूछा, वैसे यहाँ से अलाम खेल के लिए गाड़ी तो मिल जाती होगी? यकीनन वो नहीं चाहता था कि मैं पलवशा की बातों पर गुस्सा खाकर कोई उल्टा सीधा बोलूं या उसे साथ रखने के फैसले में तरमीम कर दूं। वो बोली, जी भाई, न सिर्फ अलाम खेल के लिए बल्कि वाना, डाबर मियानी, देर जवाल, रिग़्ज़ई शालूम वगैरह के लिए आसानी से गाड़ी मिल जाती है। अंगूर अड्डे से वैगन में बैठकर हम अलाम खेल रवाना हुए। मेरा इरादा था कि उसे खिड़की वाली तरफ बिठाकर उसके साथ सरदार को बैठने को कहूंगा, मगर मेरे कहने के बावजूद उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, पहले तुम बैठो। और मैं खिड़की के पास बैठते ही वो सरदार से पहले अंदर घुसकर मेरे साथ बैठ गई। मेरे जहन में सरदार की कही हुई बातें ताजा हो गई थी कि मुझे लगता है कि पलवशा तुम्हारी जात में खासी दिलचस्पी ले रही है, और मैंने ये सुनकर उसे झिड़क दिया था। लेकिन अब उसका मेरे साथ बैठने में दिलचस्पी लेने ने मुझे सरदार की कही हुई बात सोचने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी चलने के बाद मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल मेरे साथ चिपकी बैठी है, लेकिन मैंने इस बारे में मुंह खोलने की बजाय बाहर का नजारा करता रहा। इस इलाके को ज्यादा से ज्यादा पहचानना जरूरी था। अलाम खेल पहुंचने से 1.5 किलोमीटर पहले वो सरदार को दबे लहजे में मुखातिब हुई, ये वो जगह है भाई जहाँ वो वाकया पेश आया था। करके सरदार ने मजीद तबसरा करने से गुरेज किया। अलाम खेल में उतरते ही मैंने सरदार को कहा, वैसे बेहतर तो यही होगा कि ये यहीं रुककर हमारी वापसी का इंतजार करें। सरदार के कुछ कहने से पहले उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर जरा भी एतमाद नहीं। अपनी कही हुई बात से फिरने के लिए तुम जरा भी देर नहीं लगाते। क्या पता वापस आते हुए तुम मुझसे छुप कर निकल जाओ। मैंने बिगड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमने तुम्हें साथ रखने का ना तो मुआवजा लिया है और ना वादा किया है, फिर इस धूस जमाने का मतलब? वो तुर्की बतुर्की बोली, तो ये मुआवजा कम है कि एक लड़की तुम जैसे सड़ियल के साथ रह रही है। सरदार ने उसे कड़े तेवरों से घूरा पलवशे, मगर उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मैंने कहा, तुम्हें मजलूम समझना ही मेरी गलती थी, और मैंने मतलूबा समत कदम बढ़ा दिए। वो बोली, चलो, अपनी कोई गलती तो तुमने तस्लीम कर ली। उसने मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। डी ब्लॉक से वहाँ आते हुए हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, क्योंकि हम मुसलसल नशेब में चलते आए थे। अब वहाँ तक जाते हुए बुलंदी का सफर तय करना था, जो बिलाशुबा मुश्किल था। पलवशा मकामी थी और पहाड़ी इलाके में चलने फिरने का उसका तजुर्बा हमसे कहीं ज्यादा था। उसके उठते कदम देखकर लगता ही नहीं था कि वो चढ़ाई पर चढ़ रही है। वो हमसे चंद कदम आगे थी और हमारे लिए उसे कई मर्तबा अपने कदमों की रफ्तार कम करना पड़ी। सरदार का सफरी थैला उसने जबरदस्ती उससे लेकर अपने कंधों पर डाल लिया था। डी ब्लॉक के नीचे से गुजरने वाले नाले में पहुंचकर हमने हाथ लहरा कर ड्यूटी पर मौजूद संतरी को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और फिर आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगे। दरमियान तक तो पलवशा हमसे आगे आगे रही, लेकिन उसके बाद जानबूझकर हमारे अकब में चलने लगी। संतरी के पोस्ट से थोड़ा दूर ही हमें रोक दिया था।
थोड़ी देर बाद हम शनाख्त का मरहला तय करके पोस्ट कमांडर के बंकर में बैठे थे। अब तक वही पिछला पोस्ट कमांडर ही वहाँ मौजूद था, इसलिए हम तारुफ वगैरह की जहमत से बच गए थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो मतलब की बात पर आ गया। आपका राइफल का एमुनिशन पहुँच गया है और औरंगजेब साहब ने कहा है कि आप जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं जीशान को कहना मुझसे बात कर ले। मैंने पूछा फोन पर? पोस्ट कमांडर ने कहा जी हाँ, आईकॉम की रेंज से तो वो बाहर हैं। मेरे बात कराओ कहने पर उसने फोन का रिसीवर उठाया और 0 डायल करके कहने लगा, मेजर औरंगजेब को लाइन पर ले आओ, उन्हें कहो जीशान ने बात करनी है। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर रिसीवर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर लेते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, जीशान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जवान? औरंगजेब साहब की आवाज में मुझे परेशानी की झलक नजर आ रही थी। मैंने हशाश बशाश लहजे में कहा, ठीक हूँ सर। उन्होंने पूछा, और सरदार? मैंने कहा, वो भी ठीक ठाक है। वो बोले, तुम लोगों ने अल्फा 2 से राब्ता क्यों नहीं किया? मैंने कहा, जरूरत ही पेश नहीं आई, बल्कि साफ कहूँ तो हमें ख्याल ही नहीं आया था। वो बोले, देखो जीशान, अगर मैंने तुम्हें राब्ता नंबर दिया था तो इसका मकसद था तुम्हें रोजाना कम से कम एक बार तो उसे अपनी खैरियत से आगाह करना था। औरंगजेब साहब के लहजे में शामिल परेशानी से मेरा दिल हौलने लगा था। मैंने होंठ काटते हुए कहा, सर मैं माजरत खा हूँ, आइंदा ख्याल रखेंगे। वो बोले, सरदार की बीवी वज़ाए हमल में जांबर न रह सकी, आज उसे गुजरे हुए 3रा दिन है, अलबत्ता नौमौलूद ठीक ठाक है। मेरी आवाज लड़खड़ा गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोले, मुझे परसों ही तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर ने फोन पर ये अफसोसनाक खबर सुनाई और मैंने उसी वक्त अल्फा 2 को ये पैगाम दे दिया कि तुम्हें वापसी का हुक्म सुना दे। बहरहाल जो होना हो उसे किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। तुम बस ये ख्याल रखना कि उसे घर जाने से पहले ये बात पता नहीं चलनी चाहिए और उसे वाना तक भी छोड़ाऊं। मैंने कहा, ठीक है सर। उसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो बोले, जीशान मुझे अफसोस है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। मैंने कहा, जी सर। वो बोले, अगर तुम भी छुट्टी जाना चाहो तो? मैंने कहा, फिलहाल तो नहीं सर। वो बोले, ठीक है, मजीद बातों का वक्त नहीं, मैं इस वक्त वाना में हूँ, बाकी बातें इकट्ठे बैठकर करेंगे, फी अमानिल्लाह। मैंने रिसीवर रख कर एक गहरा सांस लिया और फिर होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट बखेरता हुआ सरदार को बोला, खान साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो खुशी से उछल पड़ा। सच में? मैंने कहा, हाँ यार, और दूसरी खुशखबरी ये है कि तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है। उसने मुसरत भरे अंदाज में कहा, शुक्रिया यार, लेकिन तुम फोन पर तो यूं बात कर रहे थे जैसे कोई अफसोसनाक वाकया हो गया है। मैंने मजाहिया अंदाज अपनाते हुए कहा, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि एक और सरदार दुनिया में आ गया है। मगर मेरे दिल की जो हालत थी उसके बारे में सिर्फ मेरा रब ही जानता था। वो औरत जिसे मैंने आज तक देखा नहीं था लेकिन उसे अपनी बहन की तरह समझता था, यकीनन उसकी किस्मत में अपने महबूब शौहर की बेवफाई देखना नहीं लिखा था। यही वजह थी कि वो लीजोना की आमद से पहले ही अपने शौहर से दूर चली गई थी। सरदार ने बेसब्री से कहा, मेरा ख्याल है हमें अभी निकलना चाहिए, यहाँ से शिकई तक काफी देर लग जाएगी। मैंने कहा। पलवशा ने फौरन पूछा, शिकई क्यों? मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया, तो ये वाना हेलीकॉप्टर में उड़कर जाएगा क्या? वो महसूस किए बगैर बोली, मालूम है कितनी चढ़ाइयां तय करके वहां तक जाना पड़ता है, उस तरफ से जाते हुए 2 दिन लग जाएंगे। सरदार ने परेशानी जाहिर की, तो फिर क्या करें? वो बोली, अगर कोशिश करें तो हम आज ही अंगूर अड्डे पहुंचकर वाना की गाड़ी पकड़ सकते हैं। उसका मशवरा निहायत मुनासिब था। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसकी तायद की। बैरेट M107 हमने वहीं छोड़ दी। मेरा इरादा उसे वापसी पर वहां से लेने का था। पोस्ट कमांडर से इजाजत लेकर हम वहां से निकले। पलवशा हमारे आगे आगे थी। वहां से अलाम खेल तक मुसलसल उतराई थी, इसलिए हमारी रफ्तार काफी तेज रही। सरदार सारा रास्ता बहुत खुश रहा।